Can you tell me the last topic? Characteristics of unit cell. Yes. In the previous class, we had studied characteristics of different types of unit cells. Unit cells are characterized by 6 parameters or 6 characteristics. Out of these, 3 are called edge lengths and the remaining 3 are called angles between the edges. ठीक है? अब कौन-कौन सी edge lengths होती हैं? They are labeled as A, B and C. Small a, small b and small c. ठीक है? Small a किसको बोलते हैं? Which is along the x axis. ठीक है? और उसके बाद C किसको बोलते हैं? Which is along z axis. And B किसको बोलते हैं? Which is along y axis. ठीक है? Angles किसको बोलते हैं? Angle alpha means between कौन सा? B and C. B and C के बीच में जो एंगल बनता है that is called एंगल अल्फा. और उसके बाद C और A के बीच में जो एंगल बनता है that is called बीटा. और A and B के बीच में जो बनता है that is called गामा. यही लिखा था आपने? यहाँ कंफ्यूज लग रही है. ठीक है? नहीं सर. All right. Good. So next studying types of unit cells. Now we will study types of unit cells. Types of unit cells. Is the board clearly visible to you? Yes, sir. Yes, sir. All right. So children, different types of unit cells are broadly classified into 2 types. These are called primitive unit cells and the another type is called centered unit cells. So unit cells are classified into 2 types. First is called primitive or simple unit cell. Primitive or simple unit cells. And second type is called non-primitive or centered unit cell. So whatever the different types of unit cells are there, they are classified broadly into 2 types. First type is called simple unit cell or primitive unit cell, and the second type is called centered unit cell or non-primitive unit cell. Fine. First study primitive or simple unit cells. Primitive or simple unit cell. Primitive or simple unit cell is that unit cell in which the lattice points or particles are present only at the corners of the unit cell. लिख लीजिए. Primitive or simple unit cells. Primitive or simple unit cells are those unit cells which have particles or lattice points only at corners. Only at corners. लिख लिया. Primitive or simple unit cells are those unit cells in which the particles or lattice points are present only at the corners. ठीक है? Now second is non-primitive or centered. Non-primitive or centered unit cells. Okay. These are the unit cells in which
particles or points are present particles or points are present at corners as well as at some other positions also, as well as some other positions also, such as body center, comma, face center, FACE, face center और edge center, EG. कहाँ पे हो सकते हैं? कॉर्नर्स पे तो होंगे ही, उसके अलावा बॉडी सेंटर में भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, फेस सेंटर में भी हो सकते हैं, या एज सेंटर में भी हो सकते हैं. So in centered cubic units or centered unit cells, particles are compulsorily present at corners. Besides corner position, particles or points may also be present in body center or face center or edge center of the unit cell. ठीक है, तो जब पार्टिकल्स कॉर्नर के अलावा और किसी जगह पे भी प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर्ड यूनिट सेल. Is it clearly understood what is centered unit cell? Children? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, इसके बाद हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल्स. प्रिमिटिव का कोई टाइप नहीं होता, एक ही टाइप होता है, सिंपल. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल्स. अब सेंटर्ड यूनिट सेल मतलब कॉर्नर के अलावा पार्टिकल्स और कहाँ पे प्रेजेंट है, किस पोजीशन पे प्रेजेंट है, उसके हिसाब से सेंटर्ड यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन हो जाता है. फर्स्ट, फॉर एग्जांपल वी राइट बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इसमें लिख लीजिए. In these type of unit cells, particles are located at corner as well as at the center of the body of the unit cell. Particles are located at corners as well as at the center of the body of the unit cell. कॉर्नर्स में तो रहते ही हैं, उसके अलावा पूरे बॉडी के सेंटर में भी पाए जाते हैं. ठीक. देन सेकंड टाइप इज कॉल्ड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. इसमें लिखिए, इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल्स, particles are present at corners. As well as at the center of each face. ठीक है. इसी तरीके से तीसरा, एज सेंटर्ड यूनिट सेल. Edge centered unit cell. Edge centered unit cell. इसमें लिखिए, particles are present at corners as well as at the center of edges.
Particles are present at corners as well as at the center of edges of the unit cell. And the last fourth type, end-centered unit cell. End-centered unit cell. End-centered unit cell. इसमें लिख लीजिए particles are present at all corners particles are present at corners as well as at face centers of any two opposite faces. Particles are present at corners as well as at face centers of any two opposite faces. Face centers of any two opposite faces. समझ में आ गया? अब इसको ड्रॉ कर लीजिए तो आपको ज्यादा समझ में आता है। जैसे फर्स्ट विथ अ सिंपल यूनिट सेल, एक क्यूब बना लेते हैं ऐसे। लेट अस ड्रॉ a cube like this. ये बन गया, ठीक है। If we place particles only at corners, यहाँ corners में हमने particles रख दिए। If we place particles only at corners, then the type of unit cell obtained is known as simple or primitive unit cell. ध्यान से देख लो आप, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्यों बोलते हैं इसको सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल? बिकॉज पार्टिकल्स ऑक्यूपाई ओनली एट कॉर्नर पोजीशंस, नो एनी अदर पोजीशन इज ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स। देन सेकंड टाइप ऑफ यूनिट सेल, ये देखिए इसमें पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स। पहले आप देख लो फिर कॉपी में ड्रॉ करो। पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर्स and besides this the particles are present at the center of this cube. पूरे क्यूब के सेंटर में, बॉडी सेंटर में एक पार्टिकल यहाँ भी प्रेजेंट है बॉडी सेंटर। मतलब ये सबका सेंटर है। इधर से भी सेंटर है, 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 इधर से भी है, इधर से भी है, इधर से भी है। सो ये पोजीशन कौन सी है? बॉडी सेंटर। और ये कॉर्नर से। इस टाइप की यूनिट सेल क्या कराएगी? बॉडी सेंटर यूनिट सेल। This is body centered unit cell. ड्रॉ कर लिया बच्चों? Yes, sir. Okay. Then third type of unit. No sir, एक सेकंड सर। Then third, मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूँ लेफ्ट साइड में बॉडी सेंटर पे। ये देखिए, अब थर्ड टाइप ऑफ
सेकेंड टाइप ऑफ सेंट्रल यूनिट सेल कौन सी होगी? कॉर्नर एटम्स हैं या पार्टिकल्स हैं, particles are present at all corners and besides this some particles are present at the center of each face. How many faces do a cube have? बोलो जल्दी, एक क्यूब के कितनी फेसेस होती है? 6. 6. ओके, इसका मतलब एक जो ये फेस है इसका सेंटर कहाँ हुआ? ये इस सेंटर में भी एक पार्टिकल। सिमिलरली ये वाली जो फेस है इसका सेंटर ये हुआ, यहाँ सेंटर में एक पार्टिकल। सिमिलरली इसका सेंटर, ये सेंटर में भी पार्टिकल प्रेजेंट। इस वाले का भी सेंटर, ये सेंटर में पार्टिकल प्रेजेंट। फिर ये वाली जो फेस थी इसका सेंटर, यहाँ पे पार्टिकल प्रेजेंट। ये जो पीछे वाली फेस है उसका सेंटर यहाँ। So it means हर एक फेस के सेंटर पे भी पार्टिकल प्रेजेंट है। ये क्या कहलाएगा? फेस सेंटर और कॉर्नर्स। So in face center unit cells, particles or points are present at all corners as well as at the center of each face. Such centered unit cells are called face-centered unit cells. Face-centered unit cells. समझ में आ गया ये? फेस-सेंटर्ड यूनिट सेल्स, पार्टिकल्स सभी कॉर्नर्स पे हैं और कॉर्नर्स के अलावा और कहाँ पे हैं पार्टिकल्स? At the center of each face. That is all 6 faces. Center of all 6 faces. Then next type, कॉर्नर्स में पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एज कॉर्नर। अगर इसके अलावा पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट हो जाए? एज, ये जो एजेस है, इन एजेस के सेंटर में पार्टिकल्स प्रेजेंट हो जाए, देन इट इज कॉल्ड एज सेंटर यूनिट सेल। ठीक है, किसी भी एज के सेंटर में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड पार्टिकल से कहाँ पे आ गया? एज सेंटर। ये कॉर्नर, this is called edge-centered unit cells. And the last one is end-centered unit cell. एंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स में पार्टिकल सारे कहाँ प्रेजेंट हैं? कॉर्नर्स पे, और उसके अलावा कहाँ पे प्रेजेंट हैं? एट द फेस सेंटर्स ऑफ एनी 2 अपोजिट फेसेस। सभी फेसेस में नहीं होंगे, एनी 2 अपोजिट फेसेस में होंगे। जैसे एक फेस अगर आपने ये वाली ले लिया, तो इस फेस के सेंटर में इसकी अपोजिट फेस जो है ये वाली होगी। बस बता, particles are not present at all face centers, rather they are present only at the face centers of any 2 opposite faces. Face center, corners, ये क्या हो गया? End centered unit cell. End centered unit cell. ठीक है बच्चों, तो हमने कितने प्रकार की यूनिट सेल पढ़ी? बेसिकली 2 टाइप्स की। कौन कौन सी?
सिंपल यूनिट सेल और दूसरा प्रिमिटिव यूनिट सेल्स और सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल्स और सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, we had studied primitive unit cells और centered unit cells. Then centered unit cells में हमने क्या क्या पढ़ा? Base centered, body centered, end centered and edge centers. Now all these unit cells and all the crystalline solids are classified into 7 crystal systems. टोटल कितने प्रकार के क्रिस्टल्स होते हैं? 7 टाइप्स। इनको क्या बोलते हैं? क्रिस्टल सिस्टम्स बोलते हैं और क्रिस्टल हैबिट्स बोलते हैं। सो नेक्स्ट हेडिंग दैट यू राइट डाउन इज 7 क्रिस्टल सिस्टम्स और 7 क्रिस्टल हैबिट्स। 7 क्रिस्टल सिस्टम्स और 7 क्रिस्टल हैबिट्स। So all the crystals that exist in this world are categorized into 7 main types. These are called 7 crystal systems or 7 crystal habits. 7 crystal systems. मेरी आवाज आ रही है ना आपको? पता चला मैं पढ़ाया जा रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे। बोलो, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. मैं जो कुछ ही पढ़ा रहा हूँ सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे नहीं आया तुरंत टोक देना मुझे, ठीक है? आप टोक दोगे मैं रुक जाऊंगा, रिवीजन करा दूंगा। नहीं टोकोगे मैं समझिए मान के चलूंगा कि आपको समझ में आ रहा है और आगे बढ़ता जाऊंगा। ठीक है, जहां पे भी कोई कंफ्यूजन हो स्टॉप मी। ऑलराइट, सो देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। लेट अस write the characteristics of these 7 crystal systems. तो सबसे पहले हम एक टेबलर फॉर्म में लिखेंगे सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, उसके बाद एज लेंथ और एक्सियल डिस्टेंसेस। एक्सियल डिस्टेंसेस और इसी को हम क्या बोलते हैं? एज लेंथ। edge lengths, then axial angles or angle between the edges or angle between edges। ठीक है, उसका एग्जांपल ठीक है। इस तरीके से हम 7 क्रिस्टल सिस्टम्स को अलग से पढ़ लेंगे। ठीक, अच्छा, मैं साथ में आपको इसको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको याद करना भी आसान रहेगा, अदरवाइज हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। तो पहले तो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स कौन कौन से हैं ये आपको याद हो जाए, इसलिए उसका एक सिंपल तरीके से याद कर लो। CTOMHRT, क्या नाम क्या जाएगा? CTOMHRT, ऐसे शॉर्टकट में आते हैं। CTOMHRT, ठीक है। अब इनके पूरा नाम याद रखो। C का मतलब क्यूबिक, T का मतलब टेट्रागोनल, फिर O का मतलब ऑर्थोरोम्बिक, M का मतलब मोनोक्लिनिक, उसका H का मतलब हेक्सागोनल,
R का मतलब रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल, और T का मतलब ट्राइक्लिनिक। ठीक है, ये 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक, कौन कौन से हैं? क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल एंड ट्राइक्लिनिक। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा? हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन हेक्सागोनल एंड ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम्स, रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम्स एंड मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम्स, मतलब इस टाइप से। तो आप क्या लिखोगे उसमें? उसमें क्या लिखना है? आगे जो कोरिलेशन लिखेंगे हम एक्सियल एंगल्स में और एक्सियल एजेस में, वही इनका डिफरेंस हो जाएगा। ठीक, अब क्यूबिक के लिए क्या होता है? एज लेंथ A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, तीनों एज लेंथ इक्वल होती है क्यूबिक क्रिस्टल्स में। इसमें टेट्रागोनल में A इज इक्वल टू B बट B इज नॉट इक्वल टू C। क्या हो? अगर A एंड B लेंथ ब्रेड्थ तो ठीक है, इक्वल है, लेकिन जो C है वो ना ब्रेड्थ इक्वल है ना ही A के इक्वल है, इसका मतलब वो टेट्रागोनल है। ऑर्थोरोम्बिक में A is not equal to B, not equal to C, कोई भी इक्वल नहीं होती, कोई भी एज लेंथ इक्वल नहीं है। Neither A is equal to B nor B is equal to C। ठीक, फिर मोनोक्लिनिक में क्या होगा? सेम, A is not equal to B, not equal to C। फिर हेक्सागोनल में A is equal to B, not equal to C। फिर रोम्बोहेड्रल में A is equal to B is equal to C। और फिर ट्राइक्लिनिक में A is not equal to B is not equal to C। अब देखो, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखने के लिए बता देता हूँ। पहले केस में सब इक्वल है, दूसरे में शुरू के 2 इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है, तीसरे में तीनों इक्वल नहीं है। अब इसके रिवर्स ऑर्डर में चलिएगा। रिवर्स ऑर्डर में चलोगे, कोई भी इक्वल नहीं है, दूसरा था एक है ऐसा जो इक्वल नहीं है, B is not equal to C, और फिर से A equals B is equal to C। पहले आपने डाउनवर्ड चला, फिर उसके रिवर्स ऑर्डर में आ गया, और लास्ट में फिर से क्या है? A not equal to B not equal to C। अब ये हो गया एक्सियल एंगल्स के बीच में रिलेशनशिप, एक्सियल लेंथ्स के बीच में। नेक्स्ट, एक्सियल एंगल्स के बीच में रिलेशनशिप करेंगे तो पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। पहला क्या है? एंगल अल्फा इज इक्वल टू एंगल बीटा इज इक्वल टू एंगल गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब अगर A is equal to B is equal to C and angle alpha equals to angle beta equals to angle gamma equals 90 डिग्री, तब वो क्यूबिक कहलाएगा। ठीक है, इसमें फिर क्या आ जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेम इधर भी अल्फा इक्वल्स बीटा इक्वल्स गामा इक्वल्स 90 डिग्री। शुरू के 3 केसेस सेम है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ये सेम है तीनों के लिए, क्यूबिक के लिए, टेट्राहेड्रल के लिए और ऑर्थोगोनल के लिए। नेक्स्ट आएगा इधर मोनोक्लिनिक में अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा और बीटा दोनों बराबर है, दोनों 90 डिग्री के हैं, बट एंगल गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा एंड बीटा आर 90 डिग्री बट एंगल गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट, हेक्सागोनल में क्या होगा? अल्फा इक्वल्स बीटा इक्वल्स 90 डिग्री, ठीक, एंड गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बट गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। नेक्स्ट, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस तरीके से लास्ट
alpha is not equal to beta, not equal to gamma, and not equal to 90 degree. अच्छा, अल्फा बीटा गामा कोई भी एंगल इक्वल नहीं है और कोई भी 90 डिग्री के नहीं. Then such type of crystal is called triclinic crystal. दो एग्जांपल लिख लो. पहले का एग्जांपल लिख लो क्यूबिक का, NaCl, KCl, डायमंड. NaCl, KCl, डायमंड. आपके पास और है जगह तो लिख लीजिए ZnS. बस इतने एग्जांपल्स बहुत है इस बार. ठीक है, जी सल्फाइड. ZnS और Cu आ गया ना बोर्ड में, आ गया. ठीक है, जिंक सल्फाइड एंड कॉपर, ये इसके एग्जांपल्स हो गए. NaCl, KCl, डायमंड, ZnS एंड Cu. नेक्स्ट टेट्रागोनल में SnO2, TiO2, SnO2, TiO2, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट. ये क्या है एग्जांपल में टेट्रागोनल क्रिस्टल से. देन ऑर्थोरोम्बिक में रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट. K2CO3, BSO4. ये सिर्फ कौन से हो गए, सभी की कैटेगरी में है. कौन सा एग्जांपल है ये, ऑर्थोरोम्बिक का. नेक्स्ट मोनोक्लिनिक में मोनोक्लिनिक सल्फर. मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक का एग्जांपल मोनोक्लिनिक सल्फर. और उसके बाद Na2SO4.NH2, Na2SO4.NH2 यानी कास्टिक सोडा. ये मोनोक्लिनिक है. उसका हेक्सागोनल में ग्रेफाइट एंड जिंक ऑक्साइड, ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड. देन रोम्बोहेड्रल में CaCO3, CaCO3 में कौन सा है ये आपको, कैल्शियम कार्बोनेट भी है, कैल्साइट है. ये कैल्साइट CaCO3 का CO3 है, इसमें आप लिखिए कैल्साइट. कैल्साइट जो क्रिस्टल होता है CaCO3. सर वो क्या लिखा है Na2SO4 डॉट, हां सर Na2SO4 NH2 वॉशिंग सोडा. यस सर. ठीक है, रोम्बोहेड्रल में लिख लीजिए कैल्साइट CaCO3. दूसरा एग्जांपल क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज. तीसरा एग्जांपल NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, NaNO3. और चौथा HGS, सिनेबार. और लास्ट ट्राइक्लिनिक में लिख दीजिए कॉपर सल्फेट, CuSO4.5H2, कॉपर सल्फेट. सर क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल की दोनों प्रॉपर्टी सेम है. क्यूबिक की और रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, अल्फा बीटा इतना 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 इतना, अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा 90 डिग्री. रोम्बो अच्छा एक सेकंड, थोड़ा सा इसमें एक चीज है. रोम्बोहेड्रल मेंशन कर लीजिए अल्फा इक्वल्स बीटा इक्वल्स गामा बट नन ऑफ देम इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है खुशी? यस सर. करेक्ट है. ठीक है, अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल तो बराबर है, लेकिन कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं. सर मोनोक्लिनिक में अल्फा और गामा 90 डिग्री होते हैं और बीटा 90 डिग्री नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होता है.
मोनोक्लिनिक। किसमें एनसीईआरटी में दिया बीटा इक्वल टू 120। मतलब सर बीटा नॉट 90 डिग्री। एक सेकंड दोबारा बोलो, कौन सी कैटेगरी में? मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में अल्फा इक्वल्स गामा इक्वल्स 90 डिग्री। यस सर, ऐसा दिया है। Yes, वो sir. एनसीईआरटी Beta अलग है। आप तो एनसीईआरटी वाला लिख लीजिए, ठीक है। अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये एक्चुअली एक एंगल, यहाँ पे अल्फा बीटा से मतलब नहीं है, यहाँ एक एंगल से मतलब, कोई भी एक एंगल ऐसा है जो 90 डिग्री का नहीं है। तो एनसीईआरटी इसको बीटा मान के चल रहा है, बाकी बुक्स इसको गामा मान लेती है, अलग अलग है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आउट ऑफ दिस 3 एंगल्स, 2 एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री एंड 1 एंगल इज ऑफ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, अदर देन 90 डिग्री। ये मतलब है इसका। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप उसी को मान लीजिए जैसे एनसीईआरटी में लिखा है। ऑलराइट, ठीक है। सो आई थिंक योर टाइम इज ओवर। कैसा लग रहा है ये चैप्टर सॉलिड स्टेट? टफ तो नहीं लग रहा?